good. Welcome to our EVS learning. Kids, do you know where I am standing? You can see here varieties of fruits, tree. Then you may see over here different varieties of flowers are grown. Yes, welcome to the orchard. So kids, do you know what is an orchard? Orchard refers to the fruit garden. Also, we may grow vegetables and flowers in an orchard. So kids, in today's chapter, we shall learn about a little girl Ratan who goes to visit an orchard with her grandfather. Let's begin. So kids, let's begin with chapter 11 in the orchard. As I told you, orchard means fruits and vegetables garden. Okay, so let's begin. Ratan is studying in class 4. She went to village with her grandfather during holidays. So रतन करके जो लड़की है वो क्लास 4 में पढ़ती है. ठीक है, वो एक दिन अपने ग्रैंडफादर के साथ विलेज जाती है हॉलीडेज़ में. One morning, grandfather took her to an orchard. One morning, she went with her grandfather to an orchard. When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox, at that time, Ratan ran and went inside the orchard. जब उसके ग्रैंडफादर ग्रास दे रहे थे, चारा दे रहे थे काव, बफेलो और ऑक्स को, उसी टाइम पे रतन जो है वो भागकर ऑर्चार्ड के अंदर चली गई, गार्डन में चली गई. And when she goes into the garden, she saw different flowers, saplings of vegetables and climbers in the orchard. She also saw plants of grains and pulses and also tall trees. So जब वो ऑर्चार्ड में गई तब उसने बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट फ्लावर्स देखे, फिर वेजिटेबल्स के प्लांट देखे, क्लाइंबर्स देखे. ऑर्चार्ड के अंदर उसने ग्रेन्स और पल्सेस के भी प्लांट्स देखे और टॉल ट्रीज़ भी देखे. किड्स, आपको पता है ग्रेन्स और पल्सेस जो है वो कल्टीवेट होते हैं फील्ड्स में. फार्मर जो है वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ठीक है, ऑर्चार्ड्स में, गार्डन्स में, कभी कभी घर पे भी हम देखते हैं. ओके, और प्लांट्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों में कैटेगराइज्ड है. कैटेगराइज मीन्स क्लासीफाइड है. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़, shrubs, bushes, climbers and creepers. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रंक्स और स्टेम्स एंड ब्रांचेस. ओके, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं तो कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, राइट. सो शी गोज़ टू एन ऑर्चर्ड एंड शी सीज डिफरेंट फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, shrubs, plants of grains and pulses and trees. Okay, how beautiful were the roses in the pot. Do you know they are red, yellow, pink and white? However, in one of the pots there was a very little banyan tree like span. So she also saw roses in the pot. तो वहाँ पे pots थे और pots में roses थे और वो बोली वाओ कितने beautiful roses थे. क्या आपको पता है कि वो red, yellow, pink and white कलर में थे. However, मैंने तो एक pot में छोटा सा banyan tree भी देखा, जैसे span means जैसे spreading हुआ हो, extended हुआ हो ना, उसको span बोलते हैं. She was very much surprised by seeing all this. वो बहुत surprised हो गई थी ये देख के, एकदम pleasant feel कर रही थी वो. Now, close your eyes and imagine that you are at the same place like this. How do you feel? Which kind of song would you like to sing there? Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? So, now you also do this activity. You close your eyes and imagine कि तुम लोग भी ऐसे ही सेम प्लेस पे चले गए हो. वहाँ पे तुम्हें कैसा फील हो रहा है और तुम्हें कौन सा गाना गाने का मन कर रहा है. यू फील लाइक सिंगिंग. यू विल सी दैट यू आर इन अ पैराडाइज. वाओ, हर जगह फ्लावर्स, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज ऊपर फ्लाई कर रही है. इट वुड बी सो ब्यूटीफुल, राइट. हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स. सो इसके पहले हम लोग ने बोला कि तुम लोग कोई ऑर्चार्ड में या किधर गए हो, तो अगर तुम लोग गए हो तो तुम लोग ने कौन से कलर फ्लावर्स देखे हैं वो लिखो. सो यू मे राइट रोज़, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, स्टार फ्लावर, जैस्मीन, पेरीविंकल, लोटस, hibiscus. Okay, so you may write all this and they are of different colors like red, pink, yellow, white, purple, orange. Okay, so yeah, they are asking that कोई ऐसी चीज़ें हैं तुम्हारे घर पे जिसपे फ्लावर्स की डिज़ाइन बनी हो, जैसे कि कोई कपड़े पे डिज़ाइन हो फ्लावर्स की, कोई शीट्स पे डिज़ाइन हो, कोई वासेस, फ्लावर वासेस रहते हैं ना, उसके ऊपर डिज़ाइन हो. और क्या तुमने ऐसी कोई डिज़ाइन देखी है? ये देखो यहाँ पे दिख रही है तुमको. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ
tapestry made by the people of Kutch by using embroidery. So ये जो पिक्चर है ये tapestry का है. ओके, tapestry क्या है? So एक पीस ऑफ थिक फैब्रिक होता है जिस पे पिक्चर्स और डिज़ाइन फॉर्म होते हैं. ठीक है, उस पे थ्रेड से बुनते हैं, वीव करते हैं. ओके, और उस पे बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं. जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं. यस, ये पर्स पे है, ये कुछ शीट्स पे है, ये कुछ क्लोथ्स पे है. राइट, मोस्ट ऑफ ये कच्छ में बहुत फेमस है. दिस डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स इज़ डन वेरी स्किलफुली. ये स्किलफुल वर्कर्स जो रहते हैं ना हैंडीक्राफ्ट में, जो एकदम माहिर होते हैं, वो लोग ही ये कर सकते हैं. सच डिज़ाइंस आर डन ऑन कुशन कवर्स, वॉलेट, पर्स, बैग्स एक्सेट्रा. तो जो मैंने तुम लोगों को पिक्चर बताया कि कुशन्स पे, कवर्स पे, देन बैग्स पे, पर्सेस पे, क्लोथ्स पे ऐसे डिज़ाइंस की जाती है. नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी. यहाँ पे हमें डिटेल्स दी है और यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए, नेम ऑफ़ द फ्लावर, नेम ऑफ़ द फ्लावर. सो ये डिटेल्स का एक है, तो हमें वो फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं, बुशेस पे ग्रो होते हैं, क्लाइंबर्स पे, एक्वेटिक पे, सिर्फ रात को ब्लूम करते हैं ऐसे. सो फर्स्ट वन देखो, ग्रो ऑन ट्रीज़. ऐसे 2 फ्लावर्स जो ट्रीज़ में ग्रो होते हैं वो है गुलमोहर एंड पलश. ओके, देन ग्रो ऑन बुशेस. बुशेस पे कौन से फ्लावर्स ब्लूम होते हैं? पेरीविंकल एंड रोज़. Then grow on climber plant, bougainvillea and tuberose. Then grow on aquatic plants, lotus and water lily. Then bloom only at night, the brahma kamal and moonflower. Then bloom in the day and close at night. ऐसे कौन से फ्लावर जो डे में ब्लूम होते हैं और रात को बंद हो जाते हैं? So they are lotus and sunflower. Flowers recognized by their scent. अगर हमारी आइज़ भी क्लोज हो तो भी हम उस फ्लावर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सो रोज़ एंड जैस्मीन, राइट. देन ब्लूम राउंड ईयर. सो रोज़ एंड पेरीविंकल. एंड ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स. मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप. ये नॉर्मली रेनी सीजन में, मानसून सीजन में ब्लूम होते हैं. नाउ किड्स, लुक एट दिस बोर्ड. व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड? डू नॉट प्लक फ्लावर्स. सो ऐसा बोर्ड कहाँ पे हमें देखने मिलता है? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? सो क्या तुमने ऐसा कोई बोर्ड देखा है? येस, नॉर्मली पब्लिक गार्डन्स में हम देखते हैं ये बोर्ड लगाया रहता है फ्लावर्स के पास कि यहाँ से फ्लावर तोड़े नहीं. सो डू नॉट प्लक फ्लावर्स. डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर? क्या फिर भी लोग फ्लावर्स को प्लक करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि अगर बोर्ड हो तो फ्लावर्स को ही प्लक करेगा. पर यू नो सम पीपल आर देयर, सो दो दे हैव दैट, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स, सो दे लाइक टू प्लक द फ्लावर्स. Why did people do this thing? Yeah, so they do not follow the rules, they do not believe in their duty, right? What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा अगर सब फ्लावर्स प्लक करना शुरू कर दे तो फिर वहाँ पे कोई कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं रहेगा गार्डन में, जिसकी खुशबू जो फ्रेगरेंस देता है वो नहीं आएगी और गार्डन बहुत ही डल लगेगा, ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, राइट? सो शुड दे डू दिस? No, they should not do this. Why they should not do this? Because it is the duty that they should keep their garden, their environment beautiful and clean, है ना? So they should not do this. Let's go to the next activity. Let us look closely. Go to the garden, collect flower which have fallen down. Look at the flower carefully and tell. सो आप लोग गार्डन तो जाते हो, राइट? अगर कोई फ्लावर नीचे गिरा है तो फ्लावर को तुम कलेक्ट करो और उसके ऊपर यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए उसके आंसर यहाँ पे टेबल में लिखो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव बीन टू गार्डन, तो नीचे तुम्हें कोई फ्लावर मिलता है. सो यू मे राइट व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर. सो यू मे राइट द red, it is red. What kind of fragrance does it have? So you may write sweet. Okay, then how does it look? Does it look like a bell or a bowl or a brush? ठीक है. Then do this flower grow in bunches? मतलब इसके bunch में grow होते हैं या फिर उसके petals कितने हैं? Then are all the petals joined together or separate? उसके petals जो है वो joined है एक दूसरे से या अलग अलग है? Is there any green leafy structure outside the petals? कोई green कलर का structure है क्या petals के outside पे? Can you see some thin structure in the middle of the flower inside the petals? Write its color. क्या तुम्हें कोई thin structure दिखता है petals के अंदर, एकदम छोटी छोटी line जैसे की हो, और अगर दिखता है तो उसका कलर कैसा है वो बताओ. When you touch this, do you find a powdery particle on your hands? जब तुम ये touch करते हो क्या तुम्हें powdery particle दिखाई देता है क्या? So you may write whatever flower you see. Okay, it's your home activity. Now comes blooming birds. Now what are birds? Birds means कली, जो कली रहती है फ्लावर की, उसके बारे में बात किया है.
You must have seen birds on the plants. Observe the birds on plants which grow near your surroundings. तुम लोग ने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर बर्ड्स रहते हैं, देन वो धीरे धीरे फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, राइट? Observe the birds on plants which grow near your surroundings. Okay. Now they've asked a question. What differences do you find between a flower and a bird? So, bird is the tender edge of a flower. Okay, a flower blossoms from a bird. Petals in a bird are shut and closed packed, while in a flower they are open and separate. The flower is larger than the bird. Okay. Can you tell how many days will a bird take to bloom into a flower? Let us try and find out. So तुम कोई भी एक बर्ड चूज़ करो, ओके, एंड फिर उसे ऑब्जर्व करो एंड सी कि उसको फ्लावर में ट्रांसफ़र होने के लिए कितने दिन लगते हैं. मोस्ट ऑफ प्रॉबली 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता कितना लगता है वो आपको लिखना है. उसके आंसर्स आपको फिर देने हैं उसको ऑब्जर्व करके. ओके. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ पे देखो हमें टेबल दिया हुआ है यूज़ ऑफ फ्लावर्स, ओके, और उसके एग्जाम्पल दिए, जैसे कि फर्स्ट वन देखो, एज अ फूड गुलकंद. तो गुलकंद को हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं. तो और कौन सा फ्लावर है जो हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो यू मे राइट. सो हम बनाना फ्लावर यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स. ओके. देन नेक्स्ट इज़ एज अ मेडिसिन रोज़ वाटर. सो रोज़ वाटर जो है वो हमें हेल्प करते हैं एज अ मेडिसिन के लिए. तो यू मे राइट हिबिस्कस. ओके, ये जो फ्लावर है उसका हम हर्बल टी बनाकर यूज़ करते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है. ओके. देन टू मेक कलर. सो केसुडो और पलाश जो है वो कलर बनाने में यूज़ कर सकते हैं. तो हम रोज़ और गुलमोहर लेते हैं कलर्स बनाने के लिए, राइट? इन सॉन्ग्स फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर. सो अभी हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सॉन्ग में हम यूज़ कर सकते हैं. रोजेस आर रेड, येलो एंड पिंक, द लोटस इन द पॉन्ड डज नॉट सिंग, येलो sunflowers face the sun, flowers are liked by everyone. Then for decoration, rose, so mogra, marigold, we can use both for the decoration. Then for puja and worship, again rose, so we can use again marigold and lotus. Then for perfumes, so we may use rose and mogra. Okay. Next is, let us know some more. Have you ever seen anyone selling flower anywhere? If there are any florist nearby, ask them these questions and write. So अभी हमें फ्लावर्स के बारे में बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई है. सो नाउ हैव यू एवर सीन एनी फ्लोरिस्ट जो तुम्हारे आसपास हो? सो व्हाट आर द फ्लावर्स दे सेल? सो वो कौन से फ्लावर्स सेल करते हैं? सो दे मे सेल रोजेज, मैरीगोल्ड, राइट, हिबिस्कस, धतूरा फ्लावर्स, एट्सेट्रा. And from where do they bring these flowers? So they bring from the flower market or garden, right? Why do people buy flowers? Flowers क्यों buy करते हैं people? So people buy flowers for worshipping, then various ceremonies, for various decorations, right? So for bouquets, right? So you may write that. नाउ हियर इज़ लेट्स डू दिस एक्टिविटी. सो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है और ये एक्टिविटी में क्या है दैट यू हैव टू टेक flowers collection from the trees and then you have to spread it on the old sheet of the newspaper. Okay, and do not touch them. Put some heavy object on the newspaper and then pressed them, and then when the flowers dried, after this you can take out the flowers very carefully and then you may prepare a scrapbook or you may prepare a pretty cards from it. Okay, you may use it as a decoration and you can decorate your home from it. So kids, here we end our learning. We have learned about uses of flowers and about varieties of flowers in an orchard. So kids, see you next week. Bye.